Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. So we started functions. फंक्शन में पहला टाइप हमने डिस्कस किया था अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल, है ना। दूसरा टाइप पीरियोडिक फंक्शन। किसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन? एक भी ऐसा अल्फा मिल जाए, दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल, जो भी मेरा डोमेन है। इसका डीओडी क्या है लॉजिक्स का? R plus positive real numbers. If for some alpha belongs to R, this is true. It means log x plus alpha minus log x equal to 0. It means log x plus alpha upon x equal to 0. It means x plus alpha upon x equal to 1. It means x plus alpha equal to x. It means alpha equal to 0. जबकि ये होना चाहिए, है ना। मतलब ये कि log x पीरियोडिक नहीं है। वैसे तो हम जानते ही हैं, नहीं फिर भी कसम खानी पड़ती ना कि दिस अ फंक्शन वेदर इट इज पीरियोडिक नॉट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अ फंक्शन इज पीरियोडिक इफ वी कैन फाइंड सम नॉन जीरो अल्फा फॉर विच f of x plus alpha equal to fx for all x of the domain। ये होना चाहिए। तो कभी किसी फंक्शन को टेस्ट करना हो कि whether it is periodic or not, first we assume it कि let it is periodic and then we write f of x plus alpha equal to fx for all x belongs to domain and then try to solve this. Either we'll be able to find some alpha or some absurd relation or alpha come out to be 0। ये तो होने वाले हैं ना। जैसे हमने यहां मान लेते हैं अगर x प्लस मेरा log x plus alpha equal to log x for all x, यहां से तो x कैंसिल ही हो गया। अगर अल्फा 0 नहीं आता, इवन इफ x कैंसिल्स आउट, दैट मींस दैट अल्फा इज गोइंग टू वर्क एज पीरियड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन मेरा पीरियोडिक नहीं है। जैसे आपको प्रूफ करना हो cos x स्क्वायर इज नॉट पीरियोडिक, e टू द पावर x इज नॉट पीरियोडिक, तो क्या करेंगे? वही f of x plus alpha equal to fx and simplify. Try to solve. Either you will get values for alpha, set of values for alpha, or some absurd relation, or alpha will be 0. ये तीन possibility आएंगी। Either you will get possibilities for alpha, then it will be periodic if there are possibilities. Second, it will be absurd, something like some positive plus 1 equal to 0. कुछ ऐसा ही बन सकता है। और third, alpha will come out to be 0 like this. ठीक है। In these cases, it will not be a periodic function. डन। इसमें दो चीजें की थी हम लोगों ने कि जैसे हमने कहा f of x, फॉर एग्जाम्पल 1 minus 1 x belongs to q, x belongs to q complement. I have taken any alpha rational, any alpha. Now, what is f of x plus alpha? Case 1, suppose x belongs to q implies x plus alpha belongs to q. Now this implies f of x equal to 1, this implies f of x plus alpha equal to 1, so this implies f of x equal to f of x plus alpha for all x belongs to q. Rationally true हो गया। Now x belongs to q complement, this implies x plus alpha belongs to q complement. Alpha is what? Rational. Rational plus irrational. Irrational. So if x belongs to q complement, x plus alpha belongs to q complement, and f of x equal to -1, f of x plus alpha equal to -1. So f of x plus alpha equal to f of x for all x belongs to q complement. Here see, alpha is fixed rational number. I have proved for all rational f of x equal to f of x plus alpha, for all irrational f of x plus alpha equal to f of x. Both are true for all x. Alpha is rational, that means alpha is a period and alpha is arbitrary, so every non-zero rational is a period. Function is periodic. प्रूफ हो गया। अच्छा, मैं इसकी जगह इरेशनल चूज करता, कोई बीटा
मान लीजिए बीटा चूज कर लेता हूं मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल बीटा इक्वल टू √2। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस √2, क्या ये एफ ऑफ एक्स इक्वल आएगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज एक्स इक्वल टू -√2 इट विल बी 1, वेयर इज एफ ऑफ एक्स प्लस √2 इज व्हाट? अगर मैं यहां पर या 1 प्लस √2 कर देता हूं, 1 प्लस √2, सो इट विल 1 प्लस 2 √2, वैल्यू इज -1, और अदरवाइज वहां वैल्यू क्या, जैसे 1 एफ ऑफ 1 -√2 प्लस √2, इट इज एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, वेयर इज एफ ऑफ 1 -√2 इज -1. So this is x, f of x plus beta equal to 1, where of f of x equal to -1. So f of x plus beta is not equal to fx. That means beta is not a period. So for this function, only non-zero rationals are period and no other real number. So what is set of periods? Set of non-zero rationals. Non-zero rationals. Zero कभी भी period नहीं बनता. And in this set, we try to find the smallest positive member. Though it has set of periods, but it doesn't have the smallest positive member. What is set of periods? PF इसके लिए क्या हो गया? Q minus 0. Not positive. Negative is also set of period. उसमें भी आएगा. 0 is excluded. So this is set of periods. But it has no least positive member. है कोई? So this is periodic function, non-constant periodic function, but it doesn't have the fundamental period. What is the fundamental period? The smallest positive member of PF is called the fundamental period or simply the period. जब भी find the period of this, that means they're talking about fundamental period. बहुत लोग define ही नहीं करते set of period. वो periodic claim करते हैं और फिर बोलते हैं कि जो स्मॉलेस्ट होता है उसको हम द पीरियड बोल देते हैं. गॉट द पॉइंट? अब कुछ एक दो तीन छोटे रिजल्ट देख लीजिए. वी हैव टू होप कि आज हम लिमिट शुरू कर पाएंगे. आपको वो पजल याद होगी, बैंकिंग में आती है, रेलवेज में आती है, कि देर आर 3 bells, one at church, maybe at mosque, maybe at temple, and they ring at the interval of 2 minutes, 3 minutes and 5 minutes. Suppose, है ना? There are bells placed at different places and they ring at the interval, one at 2-minute interval, one at 3-minute interval and one at 5-minute interval. Suppose they ring together at 12 o'clock, at noon, suppose. तो 12 बजे सारी एक साथ बज रही हैं. अब इंटरवल क्या है? एक का 2 मिनट है, एक का 3 मिनट है, एक का 5 मिनट है. दोबारा कब एक साथ बजेंगी वो? है ना? 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होता तो 1 बजे बज जाती. ठीक है, एलसीएम ले लेते थे हम लोग, है ना? तो जो कॉम्बिनेशन है कि तीनों कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम. यहां पर अब एलसीएम, चूंकि हम लोग अलजेब्रा में एलसीएम पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते हैं. एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यहां पर 3 चीजें हैं. एक तो लीस्ट है और दूसरा वो कॉमन भी, 2 और मोर देन 2, और मल्टीपल. व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ विवेक ओबेरॉय, सलमान खान एंड अभिषेक बच्चन? है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी 2 ऑब्जेक्ट मींस व्हाट? अभी तक हम लोग नंबर में पढ़ते रहे, नंबर्स में. जैसे रियल नंबर सिस्टम में ना नॉन जीरो उठा ली, हर कोई हर एक का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, हर कोई एलसीएम है दूसरे का. कोई भी 2 नंबर चूज कर लिए ए एंड बी, इफ none of them is 0, one divides the other, isn't it? Real number, in rational, in real number, in rational, कोई भी √2 √3 डिवाइड करता नहीं करता है. √2 upon √3 is a meaningful concept, it's member of R only. So जो LCM और HCF इन सब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिफाइन किया गया रिंग थ्योरी में. वहां पर
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ED, PID, UFD की चर्चा होती है। In a UFD or in a PID, we have various concepts. Especially the most important structure is PID, Principal Ideal Domain. Very, very important. There we generalize the concept of LCM, HCF. आप देखेंगे जो रिंग थ्योरी है ना, इट इज बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी। जैसे नंबर्स में हम बात करते हैं ना, 3 डिवाइड 6 और 12 एक्सेट्रा, 3 डजंट डिवाइड 5, है ना, 3 इज प्राइम, ये सब बोलते हैं ना नंबर्स में, इंटीजर्स में, जेड में या एन में। बट कैन वी टॉक अबाउट प्राइम इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम वेयर और सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स? 3 इज प्राइम कोई आपसे पूछे, वेल 3 इज प्राइम और नॉट, आगे कुछ नहीं बोले आपसे, तो आपको सर डिपेंड्स। अब बड़े हो गए आप, 9th 10th वाला प्राइम वाला बात नहीं है, अनकटेबल जो किसी और से नहीं कटता हो, ठीक है, उस टाइप के प्राइम नहीं होते। प्राइम इज अ कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर की बात समझ में आती है। आपसे आप किसी से पूछिए व्हाट इज प्राइम, तो वो बोलता है 1 and n आर दी ओनली फैक्टर्स, देन वी से n इज प्राइम। जबकि ये इरिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन है। दो इन नंबर्स z बोथ आर सेम, प्राइम और इरिड्यूसिबिलिटी सेम हो जाते हैं बिकॉज इट इज ईडी, पीआईडी, यूएफडी। z जो है ना वो ईडी है, पीआईडी, यूएफडी है, वहां ये सेम हो जाते हैं, हर जगह सेम नहीं होते। 2 प्राइम है आपके लिए, बट z में प्राइम है वो, z i में थोड़ी है, गॉसियन रिंग में 1 + i × 1 - i = 2। 5 is prime in z, not in zi। 1 + 2i × 1 - 2i = 5, है ना। 3 + 4i × 3 - 4i, 3 3 9, ज्यादा हो गया। 2 + 3 है ना, 2 + 3i, 2 - 3i is 13, है ना, 4 और 9 13, वो 25 हो गया था, ठीक है। तो ये पाइथागोरन हम नंबर ढूंढ रहे हैं, पाइथागोरन टाइप से। पाइथागोरन के मुझे एक मिस्टर इसने समझाया था, जो कारपेंटर नहीं होता उसने समझाया पाइथागोरन ने एक दिन मेरे को। ऐसे रखा है स्केल से, जो भी उनका डायमंड कट होता है, ऐसे लिए सीधे बिल्कुल पैरेलल लाइन कट गई। हाउ इट इज सो पैरेलल, तो मैं कैसे मालूम कि बिल्कुल सीधी है? कहता 3 4 5। मैंने 3 4 5 किया, सर उस्ताद ने समझाया था मेरे को 3 4 5 करना, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। मैं 3 4 5 क्या है? कहता मैं कहीं से भी यहां भी 3, यहां देखता हूं, अगर ये 5 है तो ठीक है। मैंने 4 5 6, सर 4 5 6 में काम नहीं होता। और उसको नहीं पता था कि पाइथागोरन है कि अगर 3 है, ये 4 है, इसका 5 है तो पैरेलल होगा, 90 डिग्री ही बन रहा है एंगल। तो जहां भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर, तो बीच में 3 4 5 3 4 चेक कर लिया, एक यहां चेक कर लिया, एक यहां चेक कर लिया, एक यहां चेक कर लिया, हो गया पैरेलल उसका। ऑब्वियसली 90 99 डिग्री तो मेंटेन होता जा रहा है उसका। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग, नंबर्स आर प्राइम और नॉट, यू हैव रिजल्ट, और जो वो है बिल्कुल ठीक है आपका, जिसको आप बोलते हो अनकटेबल, बिल्कुल ठीक है वो। बट नंबर्स, when we talk about just word prime, when you say it is prime, so you can always answer as a member of what? When they don't say number, what is, whether it is prime or not, तो एक एलिमेंट की बात हो रही है। वो अलजेब्रा का स्टूडेंट भी हो सकता है और आपसे पूछ रहा है, तो जानता है आप एमएससी करके आओ मैथ्स में, तो वो उस पर्सपेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि वो आप जानते हो कि नहीं। सो व्हेन दे से whether 2 is prime or not, you say sir in which ring you are talking about? In ring of rationals? So no, it is not so sir, it is unit there, because 1/2 exists and inverse exists, है ना, रैशनल रिंग में। as zi, ring of integers, Gaussian integers, so it is not, it is neither unit nor this, it is some non-zero non-unit element, so it is reference frame। यहां इश्यू क्या होता है कि मैं एक एलसीएम वर्ड यूज कर रहा हूं और हम बात कर रहे हैं आर पे। आर में तो कोई भी नंबर किसी के भी एलसीएम बनने को तैयार है। यहां पर अजीब सी बात है, लीस्ट के आगे द नहीं लगता अलजेब्रा में, मतलब 3 4 5 के दुनिया भर के लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं। लॉट्स ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनफैक्ट एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 5 इन आर। यहां एक टर्म यूज करेंगे रैशनल का,
फाइनल स्टेप में कुछ अचीव करना। जैसे एक का पीरियड 2 होता और एक का पीरियड पाई होता, 1 घंटी बजती है हर √2 मिनट पे और एक पाई मिनट पे, दोबारा कब बजेगी? कभी नहीं बजेगी साथ में। वो कोइंसिडेंस अगर आ गया आपके फाइनल स्टेप में आ गया, अगर वो फाइनल स्टेप, इट विल नेवर एट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। सो इनफैक्ट नेवर। फाइनाइट नंबर टाइम पे कब आएगा? जब वो रैशनल मल्टीपल हो। यू कैन achieve rational number after finite number of steps, not irrational. Through rational sequences, through sequence of rational terms, we can never achieve irrational limit in finite number of terms. अगर कोई सीक्वेंस रैशनल की है और इरैशनल में कन्वर्ट करना चाहती है तो वो लिमिट कभी अचीव नहीं होती है ना। तो यहां देखिए, अब एक क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि f of x इक्वल टू f of x प्लस अल्फा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये मेरा समझ लो पीरियडिक फंक्शन और अल्फा एक पीरियड बन गया। नाउ t इज द पीरियड, द फंडामेंटल पीरियड। दैट मीन्स व्हाट? f of x plus t equal to fx and this implies f of x plus nt equal to fx for all x। इसको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस n माइनस 1 t प्लस x ऐसे करते ले आएंगे, n माइनस t प्लस t। नहीं, रिपीट करते जाएंगे, ये बनता चला जाएगा सेम। तो यहां से अगर हमें ये पूछे इफ f इज पीरियडिक वेदर इट इज पीरियडिक और नॉट, f एंड g आर पीरियडिक देन fx प्लस gx इज पीरियडिक और नॉट। सिंपल क्वेश्चन। अगर इसमें और f ऑफ x प्लस b सी एफ एक्स प्लस डी ये पीरियडिक है कि नहीं? अगर है तो उनका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? क्या वही होगा या चेंज होगा, या हो सकता है ना भी हो? इजंट इट? सो हियर वी हैव रिजल्ट्स ऑन पीरियडिक फंक्शंस। लिखना शुरू करते हैं। सम रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। नंबर 1, सम रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज अबाउट पीरियडिक फंक्शंस। नंबर 1, इफ एफ इज पीरियडिक with fundamental period t, then gx equal to af a into f of bx plus c plus d। मतलब x में मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें ऐड किया और फिर f में मल्टीप्लाई किया और उसमें भी ऐड कर दिया, इज पीरियडिक with fundamental period equal to t upon mod b। जो x में मल्टीप्लाई किया गया सिर्फ उससे फर्क पड़ता है और किसी से नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे भी नहीं पड़ा और इससे भी नहीं पड़ा। अ फंक्शन इज पीरियडिक, रिमेन्स पीरियडिक if we multiply something into f or add into f or into x with same fundamental period, but the moment you multiply something into x then the fundamental period changes. For example sin 2x has fundamental period equal to, sin से क्या था? पाई। ठीक है, अब है ना? ठीक है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दिस गिव्स यू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। ये इधर आएगा और 2 माइनस 1/2 cos 2x और यहां से cos स्क्वायर x इक्वल टू, ठीक है, 1/2 cos 2x प्लस 1/2। व्हाट इज पीरियड ऑफ cos 2x? cos x, पीरियड ऑफ cos x इज cos x 2 पाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इससे पड़ेगा। इसका पीरियड क्या हो गया? पाई। इसका पीरियड क्या हो गया? पाई। तो साइन स्क्वायर एक्स
और cos square x are Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. periodic function with period पाई। ठीक है, अगर वो पावर में ले जाए तो आपको अल्टीमेटली इससे फर्क तो पड़ता है, यहां मल्टीप्लाई करने से उसका रूल निकल आता है, यहां से मैं रूल, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल इससे फर्क पड़ता है, हम निकाल सकते बड़े आराम से। सो फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड, if f and g are periodic function, second result, if f and g are periodic function, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं पीरियडिक। ओके, इफ f and g are periodic functions, then a, तीन इस पर रिजल्ट लिखते हैं हम, सेकंड में तीन पार्ट है, पहला f प्लस g मे नॉट बी पीरियोडिक, मतलब सम ऑफ पीरियडिक फंक्शन मे नॉट बी पीरियोडिक। एक क्वेश्चन आया था लीनियर अलजेब्रा में, दे हैव गिवन सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस, वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन, उनके सबसेट दे दिए, उससे पूछा इसमें से कौन कौन से वेक्टर सब स्पेस बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट फॉर्म वेक्टर सब स्पेस। उसमें एक ऑप्शन था पीरियोडिक फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शंस, आर इंटीग्रेबल, बाउंडेड वेरिएशन, चार ऑप्शन थे। कम से कम अब जैसे ही आपको मालूम चला कि सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन मे नॉट बी पीरियोडिक, दैट मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू पीरियोडिक, सो इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, पर्पस यही था बताने के पीछे कि जहां जहां बोलते हैं ना कि इफ दिस देन दिस, फॉर एग्जांपल इफ सीक्वेंस ए एन एंड बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट, यू नो अल्फा ए एन प्लस बीटा बी एन इज अ convergent sequence, that means the collection of convergent sequences form vector space, है ना। ऐसे उस जो सीरीज में भी है, यहां पर collection of periodic function does not form vector subspace, the linear combination of periodic function may not be periodic, पहला। इसी में B लगाइए, f plus g may be periodic without fundamental period, f plus g may be periodic, पहले में क्या था, may not be periodic, मैं तीनों के एग्जांपल लिखूंगा अभी। f plus g may not be periodic, सेकेंड may be periodic but without fundamental period, even if f and g have fundamental period, even if f and g have fundamental period. Third, may be periodic with different period, then with different period, what is different, then the LCM of the periods of f and g, LCM of the fundamental periods of, LCM को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, ये आपके लिए LCM है जो आप लोग बचपन से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, उनका LCM ले लेते हैं, वो वाला LCM, ठीक है, विद द डिफरेंट फ्रॉम द LCM ऑफ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ f and g। तीन रिजल्ट है मेरे पास। If f and g are periodic functions, then A, some may not be periodic, B, some may be periodic without fundamental period, even if f and g have fundamental period, ठीक है, and third, may be periodic
and the with different fundamental period and different from the LCM of the fundamental period of F and G. अब LCM का मतलब समझिए यहां पर वो जो आपका LCM है, स्केलर मल्टीपल की बात करते हैं. चलो एक चीज देखिए, लेट f of x इक्वल टू साइन x, gx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x. It has period 2 pi and it has period 1. This is t. हम फंडामेंटल पीरियड हमेशा t से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. देन hx इक्वल टू f of x प्लस gx, f of x प्लस gx. देन h is not periodic. Why so? आप h of x प्लस अल्फा करोगे तो यहां पर f of x प्लस अल्फा प्लस g of x प्लस अल्फा, ये fx आ जाए और ये gx आ जाए. ये तब आएगा जब अल्फा इंटीजर होगा और ये तब आएगा जब 2 पाई का मल्टीपल होगा. जब 2 पाई का मल्टीपल होगा दोनों एक साथ कब आएंगे? जब वो अल्फा, समझ रहे ना, ये इंटीजर हो और ये, तो इंटीजर और 2 पाई का मल्टीपल, एक रैशनल एक इरेशनल, कभी नहीं आने वाला. सो दिस एफ एच इज नो सच अल्फा एग्जिस्ट. नहीं तो आप क्या करो, सम करके फिर निकालने की कोशिश करो, अपने आप एब्सर्ड आ जाएगा. इंटरेस्टिंग ये है कि f और g का पीरियड सेम आ जाए. f भी पीरियोडिक है, g भी पीरियोडिक है, और f एंड g हैव सेम पीरियड, देन f प्लस g पीरियोडिक हमेशा होगा, जरूरी नहीं वो पीरियड हो. पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड हो. f इज पीरियोडिक, g इज पीरियोडिक, देन f प्लस g may or may not be periodic. Even if they have same period, we have example where f plus g does not have fundamental period. अच्छा, सबका जब पीरियड सेम होगा ना तो पीरियड तो आएगा ही आएगा, उस पर रिपीट तो करना ही करना है, बट फंडामेंटल पीरियड ढूंढना पड़ता है. जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज पीरियड? पाई. जी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, व्हाट इज पीरियड? पाई. एच एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, व्हाट इज पीरियड? कहां से बना जाएगा? दिस इक्वल टू 1, बट डजंट, इज दिस कांस्टेंट फंक्शन. सो फॉर दिस फंक्शन पी एच इक्वल टू वॉट? आर माइनस 0. फॉर दिस फंक्शन एच द सेट ऑफ पीरियड इज वॉट? आर माइनस 0. वट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मेंबर ऑफ दिस सेट? नो. सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, बोथ हैव फंडामेंटल पीरियड एंड दैट टू सेम, वो भी सेम है, बट इसके बाद भी सम फंक्शन हैज नो फंडामेंटल पीरियड, दो इट इज पीरियोडिक, है ना, दो इट इज पीरियोडिक. कंफर्म? दोनों का सेम होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वही पीरियड सम का भी आ जाए, है ना. एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x, पीरियड इसका है पाई. gx इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x, इसका पीरियड भी है पाई. एंड hx डिफाइन कीजिए, fx प्लस gx विच इज साइन 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x एंड हैज फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू पाई बाई 2. पाई बाई 2 भी चेंज हो जा रहा है, इसका पाई, बट सम फंक्शन का पाई बाई 2 भी काम कर गया ना. इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये खुद रिपीट नहीं हुआ, ये बन के रिपीट कर दिया. कई बार वो कॉम्बिनेशन में ये शिफ्ट करता रहता है, एक पे ये शिफ्ट कर गया, ये शिफ्ट कर गया, लौट के वहां से आ जाएगा, जो थोड़ी वही रिपीट करे. इसने दूसरे वाले रिपीट कर दिया, इसने इसको रिपीट कर दिया. पाई बाई 2 पे ये खुद रिपीट नहीं हुआ, इसने ये दे दिया, और उस पॉइंट पे इसने ये दे दिया, सम अभी भी वही आ गया, है ना. सो दोनों एग्जांपल देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत एग्जांपल है कि हियर वी हैव सेम फंडामेंटल पीरियड बट सम फंक्शन हैज नो फंडामेंटल पीरियड बिकॉज इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट.
In second example, both have same fundamental. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Period, but some function has lesser period. ठीक है, कंफर्म. ये वहां काम आते हैं. इस तरह एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट पेयर ऑफ फंक्शन f and g, periodic function with same period, but f plus g has no fundamental period. True. f plus g has fundamental period other than t, जो कि f और g का है. That is also true. That is also true. एक ये कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको यहां से. थर्ड नोट लगाइए. थर्ड नोट. फर्स्ट क्या था? सम ऑफ पीरियडिक फंक्शन मे नॉट बी पीरियोडिक. सेकंड में तीन कंडीशन दे दी हमने, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही. थर्ड में एक कंफर्मेशन टेस्ट ले लेते हैं, जिन केसेस में तो कंफर्म है कि हो ही जाएगा. ठीक है, वो कैसे? कि लेट f1, f2 एंड fk आर पीरियोडिक with periods t1, t2, tk. फाइनाइट. सम डिफरेंस लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होता है? फाइनाइट का होता है. सो f1, f2, ftk आर पीरियड फंक्शंस विथ t1, t2, tk आर पीरियड इफ देयर एग्जिस्ट t अ रियल नंबर. पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो होना चाहिए. अगर नेगेटिव मिल जाएगा तो पॉजिटिव भी मिल जाएगा. देयर एग्जिस्ट टी पॉजिटिव सच दैट टी अपॉन टी आई बिलोंग्स टू, ये सारे पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि फंडामेंटल पीरियड है, विथ फंडामेंटल पीरियड टी. और टी पॉजिटिव रेशियो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. आई कैन डायरेक्टली से एन. आई कैन डायरेक्टली से एन. और क्यू भी कर लोगे, रैशनल भी मिल जाएगा ना, तब भी काम रैशनल मिल जाएगा ना कि टी अपॉन टी आई इज रैशनल. तो मैं सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके ना उसको सबको क्या बना सकता हूं? नेचुरल बना सकता हूं. तो डायरेक्टली ये लिख रहे हैं कि इफ t1, t2, tk आर फंडामेंटल पीरियड्स ऑफ f1, f2, fk एंड we can find t so that t upon ti belongs to natural number for all I equal to 1 to k, then summation alpha I fi equal to h is periodic. may not be same period t. ये t पीरियड होना जरूरी नहीं है उसका, वो तो ढूंढना पड़ता है, कोई मेथड नहीं है उसके लिए, आपको हिट एंड ट्रायल से ढूंढना पड़ेगा. गारंटी ये हो गई कि वो मेरा पीरियडिक हो जाएगा. जैसे अगर देखें साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, इसका पीरियड क्या है? 2 पाई. इसका पाई बाई 2 पाई, और इसका 2 पाई बाई 3. ऐसा कोई टी मिल रहा है? बताओ. टेक टी इक्वल टू 2 पाई. टी इक्वल टू 2 पाई. ये t1, t अपॉन t1 1, t अपॉन t2 2 और t अपॉन 3. नेचुरल नंबर आगे नहीं आ गए. सो दिस, सपोज दिस इज fx, सो f इज पीरियडिक. चांस की बात है वही आया भी है पीरियड, बट पीरियड फंडामेंटल पीरियड हमेशा आप अलग से निकालेंगे. इस मेथड से केवल क्लेम करेंगे कि दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी पीरियोडिक. ठीक है, एक नोट लगा सकते हो, मे बी यूजफुल. एलसीएम ऑफ P1 upon Q1, P2 upon Q2 and so on, Pk upon Qk is equal to LCM of P1, P2, Pk over SCF of Q1, Q2, Qk, where
पी आई एंड क्यू आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रैशनल्स का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, जब सारे फंक्शन पीरियोडिक हों और सबकी पीरियड रैशनल हों तो वहां ये मेथड काम कर जाता है कि आप उनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम वो यूजफुल हो जाएगा। वो एलसीएम ही पीरियड बनेगा या फिर उससे छोटा बनेगा, अपर बाउंड तो मिल ही जाती है। जैसे पीरियड्स क्या क्या है इनके, पहले का क्या है, T1 इक्वल टू 1/2, T2 इक्वल टू 1/3, T3 इक्वल टू 2/5, T4 इक्वल टू 5/3। तो इसका एलसीएम क्या आएगा अगर निकालना चाहें हम, 1/2, 1/3, 2/5 एंड 5/3। सुंदर होता है, यहां पे 2/9 करता है, यहां पे 5/9 करता, तो नीचे वाले अच्छे लगते देखने में। वह 2 एक होता तो जीसीडी हमेशा 1 ही आएगा एलसीएम। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो वो तो जीसीडी नीचे वाले का 1, तो क्या आ गया 10। सब एक साथ 10 पे रिपीट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। दिस फंक्शन इज पीरियडिक फंक्शन f of x इक्वल टू, दिस इज पीरियडिक फंक्शन एंड f of x प्लस 10 इक्वल टू f of x। उस पर रिपीट करना ही करना है उनको, उस पर रिपीट करें ही करेंगे, उससे पहले पे नहीं करेंगे। जब भी रैशनल पीरियड आ जाए ना, रैशनल नेचुरल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, वहां एलसीएम काम कर जाएगा, रैशनल एलसीएम काम कर जाए। उसके अलावा कुछ उठपटांग आ रहे हैं तो वो ही जानते हैं फिर तो। फिर भी एलसीएम कैन बी एन अपर लिमिट, कि जैसे हमारा इसका भी पाई है उसका भी पाई है, तो पाई पे रिपीट करे ही करेगा, उससे पहले नहीं कर जाए, ये एक्चुअल करना होता है। ऐसा हुआ ना, दोनों का पीरियड पाई था, अब एलसीएम ढूंढने की कोशिश करेंगे, पाई का मल्टीप्लाई ढूंढने को, तो पाई ही आ गया वहां पर, बट किस पे रिपीट कर गया वो, पाई 4 पे। देखा ना अभी, एक तो हमेशा रिपीट कर रहा है sin स्क्वायर एक्स, दोनों में पाई पाई था, और जबकि वो फंडामेंटल पीरियड आया भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों सेम हो तो फंडामेंटल पीरियड आ जाए। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट फाइंडिंग पीरियड्स, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, कंफर्म। आगे इसका इस्तेमाल आपको एनालिसिस में मिलता है, जैसे हम अगर फिक्स पॉइंट ढूंढे, यूनिफॉर्म क्वांटिटी ढूंढे, बाउंडेड वेरिएशन या रीमान इंटीग्रेबिलिटी, उन सब जगह इसका बड़ा यूज होता है कि अगर कंफर्म हो जाए ये पीरियोडिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर एंड पीरियोडिक हैज टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये एज इट इज स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन का। नहीं, इस पूरे टॉपिक में, एलसीडी वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, सिलेक्ट करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, इस तरह के ऑप्शन बनते हैं। तो ये रिजल्ट बड़े काम आएंगे आपके। जैसे अब मिल गया ना, इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक, अगर आगे पढ़ेंगे वहां पर ये यूज कर पाएंगे हम, इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक देन x प्लस टी और x प्लस 2t के बीच में सारी वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी आपको। x प्लस टी से x प्लस 2t के बीच में सब रिपीट कर जाएगा पूरा, तो रेंज कहां मिल जाएगी, x प्लस टी से लेके x प्लस 2t, इस इंटरवल पे आप रेंज निकाल लीजिए, यही पूरी रेंज होगी। उसके बाद रिपीट करनी करना है उसको ना, isn't it? तो रेंज यहां से अगर वो x प्लस टी और x प्लस 2t के बीच में बाउंडेड है तो पूरे r पे बाउंडेड है। ग्राफ ड्रॉ करना है, x प्लस टी और x प्लस 2t, x को 0 पुट कर सकते हो अगर नेबरहुड में आ रहा है वहां पे, इतने में ड्रॉ कर दीजिए, पूरे r पे हो जाएगा। वही रिपीट करना होता है। आपको याद होगा आपने किया भी यही था कि ये फंक्शन मेरा पीरियोडिक है, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। तो आपने ग्राफ केवल पूरे फंक्शन में कहां ड्रॉ किया, 0 से 1 के बीच में, 0 और 0 प्लस टी, टी इज 1, इसमें ड्रॉ किया और बाकी सब जगह रिपीट कर दिया। साइन एक्स है आपका
ये पीरियडिक फंक्शन है। पीरियड क्या है? 2 पाई। आपने 0 से पाई के बीच में ड्रॉ, 2 पाई के बीच में ड्रॉ कर लिया। 0 से 2 पाई, और उसके बाद इसी को रिप्लीकेट कर दिया सब। नहीं, हर इंटरवल में वो ऐसे शिफ्ट करता आएगा, यहां से फिर ऐसे आएगा, पीछे वहां से ऐसे आएगा। सो इन दिस वे द यूटिलिटी ऑफ पीरियडिक फंक्शन इज इन 3 phases: 1 टू डिस्कस रेंज, 2 टू डिस्कस बाउंडेडनेस, 3 टू डिस्कस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये 3 चीजें हैं। अगर एक पीरियड में एक फिक्स पॉइंट मिल गया तो हर पीरियड में एक फिक्स पॉइंट मिलता जाएगा, एंड हेंस इट विल हैव इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब जहां ये एक्स एक्स को कट करता है, इन दैट वे अगर उसमें मिल रहा है। बट पीरियड एन पॉइंट में मिल रहा है तो आप नहीं कह सकते कि y इक्वल टू एक्स लाइन है हमारी, उसका गया तो गया, फिर कट नहीं करेगा। सो इन दिस वे वी कैन डिस्कस पीरियडिक फंक्शंस। यहां से आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।